will be there in the scope related to the sales transactions. Okay. So as I have already shared, पहले भी मैंने share किया था in the mail the scenarios which we are going to discuss today, which will be as mentioned here: sell from stock, the customer returns, the credit memo processing, and the debit memo processing. So you can see here like the today's date. Based on that, I'll be sharing the screen related to the transactions. Okay. विजुअल है कि जूम करते थोड़ा? पहले जूम कर लो, थोड़ा जूम कर लो, ऐसे भी एक पेज में दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये है वेरीफाई करो सेल्स के सीटीएम ज्वाइन है कि नहीं, जो नॉमिनेटेड हो वो ज्वाइन होनी चाहिए, राइट? सेल्स सीटीएम आई थिंक बरखा जी एंड अमित जी। ओके, ठीक है। ओके, सो एक बार कंफर्म कर लूंगी फिर। ओके. Okay, this is the first scenario which we are going to discuss. As you can see here, the name which is mentioned here, key sell from the stock. Sir, So now this your will screen start. is not visible. Hello, Screen is not visible, sir. सर आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही क्लियरली। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। पूछो विजिबल है कि नहीं। ठीक है, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है सर आपको? हाँ जी, एक मिनट में फिर से कर रहा हूँ, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए अगेन। अभी विजिबल है क्या? नो सर। नो सर। लिख करके फिर से बंद करना। नहीं हो रहा है। एक मिनट में फिर से रिज्वाइन कर रहा हूँ। नेटवर्क का प्रॉब्लम। डिस्कनेक्ट करते हैं। Disconnected. 5 second network. रिफ्रेश हो जाएगा, देखिए। जाएगा बंद।
Sir, screen is not visible. सचिन जो है एक्सेप्ट कर लेना प्लीज, एक बार एक्सेप्ट कर लेना बैक एंड में पर कोई। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो अभी क्या विजिबल है क्या स्क्रीन, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes, sir. Okay, good to go. So as you can see the transaction flow for the sell to stock. So as you can see here, the starting process, which is there mentioned as a customer orders material. There is a credit management which is active currently. So the next, once it is confirmed, it will. Hello. Sir, agar if anyone want to put up any question, just unmute and then ask. Otherwise, please mute. Okay, so going forward, the next will be the quotation which will be created. Based on the quotation, there will be a sales order which is created with reference to the quotation. The next, which it will be followed by the approval process, which is an optional entry that can be adopted or not. Okay, so next we process with the availability check based on the material which is available there in the stock or not. The next will be the credit management review blocked sales order. So this is also an optional entry. हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में चलेगा कि ओनली इंग्लिश वुड बी बेटर? बोथ आर ओके ना, ठीक है। तो क्रेडिट मैनेजमेंट, ओके, सो क्रेडिट मैनेजमेंट इसमें रहेगा एक्टिव, दैट इज एन ऑप्शनल एंट्री. सो बेस्ड ऑन द approval and the confirmation, the next process will be allowed. Okay, so once it is confirmed, it will ask you to create the delivery. Then the dispatch process will begin from here. Basically, the execute picking, the batch will be determined, that will be an optional entry. The split batch optional entry, that will be there. The postcode issue, then the proof of delivery, and the create billing document will be the last one which will be created in this. And once the once the billing document is released, that will actually provide you the accounting document that can be seen here basically in this. So once I will show you the transaction, it will make more clarity and more understanding about the process. आपको समझ में और clearly आ जाएगा कि कौन सा document कहाँ पे देखना है और कैसे execute करना है basically. Okay. So this is the sheet which I have prepared currently, like for the today's. I will start with the inquiry, the quotation, the order, delivery, and the billing. Okay. So I think from the past 2 or 3 days, you are aware of this particular interface. आपको पता होगा like this is the screen which will be visible to all and the access आप लोगों को मिल गया होगा. So there are a set of tiles which are required for the transaction. Without that, it is not possible for any transaction to process. So based on my role, I have arranged these tiles. So based on your particular roles also, you can arrange them based on your activities actually. So I will start with the inquiry. Just click on the tiles. And one important thing is there, जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो there is numbers they are showing. So ये numbers basically क्या हैं कि number of transaction which you have ran in the system. Okay. So जैसे 3 हैं तो these for the demo purpose I have done. So once you click on this, there is an option which is called the create inquiry. Once you click on here, you have to enter firstly the sales organization,
which we have earlier, I think, discussed related to the organization structure only. So I'll be taking this particular sales organization, which is actually the selling entity, the distribution channel, how the goods are transferred to the customer, the division, the product line, which is basically called. Okay. The next important thing is the document type. This actually plays a major role. बहुत जरूरी रहता है ये. Based on the document type only आपका transaction होता है. तो अगर आप इंक्वायरी में है डेफिनेटली वहां पे सिर्फ यही दिखेगा आपको, बट यू हैव टू सेलेक्ट दिस IN which is the initial for the inquiry. अगर IN नहीं समझ में आ रहा है, there is also the description which is available to make you understand. ठीक है, just click on the continue. So there I have already prepared a customer master. So you can, there is no need to, कोई जरूरी नहीं है आपको नंबर याद रहे. If you remember the name जो आपने इनपुट किया है, तो वो भी आप लाइक इनिशियल लेटर डाल के सर्च कर सकते हो. लाइक Z I have written. So here you can see the details. कुछ डिटेल्स आई हैं which are from the customer master जो कि मैंने मेंटेन किया है, और सुबह शीट भी आई थिंक शेयर किया हुआ है टेम्पलेट आप लोगों को. ओके, वो आपको मिल जाएगा. फिर मैंने CTMs को भेजा है जी. ओके, so I have selected this one. So in this customer reference, you can mention the PO number or other details necessary for searching the sales order. जब आप सर्च करेंगे कोई इंक्वायरी कौन सा है based on the filters, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो. Currently I am writing inquiry 01, the customer reference date. This is also the plays a major role while searching any inquiry or any transaction you are running in the sales process, valid from okay. Once you press enter, it will take you to the material. यहाँ पे here you can input whether the material code. This will give you the clear like which material to take. So which material to take for the transaction. It will ask you to next input the order details. So order quantity in the inquiry you can mention does not have any relevance. Basically, you can mention like 50 I am inputting here. It is actually just the interest which customer has shown for placing the particular order. Okay, so here the condition record which you have maintained automatically, it has taken the input, the price and all details. So going forward, like this is the header. Basically, this will give you all the details related to all the items. If they are 100 items, it will cumulative give you the overall details of the amount, the price and everything. And this is called the item details. Basically, if you can add the n number of items here based on your requirement. Okay, once it is inputted all the details, you can go to the menu. This is also the important one जो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे. Means regular practice करेंगे definitely it will come into a habit. Edit पे जाके incompletion log. Incompletion log का basically होता क्या है कि it will provide you the understanding the idea if something is missed there in the customer master. जैसे payment of terms है, तो यहाँ पे आप enter कर सकते हो. Just double click और manually आप input कर सकते हैं. And also you can select it from here, the option which is available here. Okay. So press enter here. Next, just edit next data, click on this. Below you will see here the document is complete. Okay, so that means there nothing is pending. If you want to enter any additional detail, definitely you can go there and input based on your requirement. If not, then click on the save button. Okay. Once you click here on the save button, there is a number which is generated. You can see here the ending number is 3. So this is the third number, तीसरा number है for the inquiry. Okay, so here you can see पहले 3 था, अभी 4 है यहाँ पे. So next process will be followed by the quotation. Yeah, quotation. So once you click on this, it will be created with reference to the inquiry. So all the fields which are there, that will be taken as a reference. So here also it will be followed with the same entries. Plus 1000. And the document type here. You can see the quotation type QT is there. QT means the quotation. So once you select this,
इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग क्लिकिंग ऑन द कंटिन्यू, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे क्रिएट विथ रेफरेंस। सो क्रिएट विथ रेफरेंस में क्या बताएगा आपको, इट विल टेक यू टू द इंक्वायरी जो आपने क्रिएट किया अभी। अभी थर्ड नंबर आपने जो क्रिएट किया है, तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे थर्ड नंबर आपको दिखाएगा। यू कैन स्क्रॉल राइट, यू कैन फाइंड द फर्दर डिटेल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द कस्टमर रेफरेंस जो आपने, मैंने वहां पे लिखा था ना इंक्वायरी 1 इंक्वायरी 2, वो बेस्ड ऑन उस पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। नहीं, आप ही का रहेगा ये जो आपके पास आएगा। हाँ वैसे ही रहेगा, मत मीन्स जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, आपके पर्पस के लिए कि ये रिक्वायरमेंट आई थी, फिर उसके बेसिस पे आप जो सप्लाई करेंगे वो आगे प्रोसेस होगा फिर द सेल्स ऑर्डर। ये आपके सिस्टम में एक तरीके से एंट्री रहेगी। कस्टमर ने पीओ दिया तो हमको अभी हम करते हैं, सेल्स ऑर्डर करते हैं। अभी डायरेक्ट सेल्स ऑर्डर आप करते हैं क्या? अभी इसमें इंक्वायरी नहीं हो जाएगा उसका मतलब नहीं पीओ यदि मिल रहा है आपको सीधे तो ऑर्डर से स्टार्ट हो। यदि उसने इंक्वायरी मांगी है ये उसका प्राइस दो, उस केस में इंक्वायरी नहीं, तो हमारे पास सीधे पीओ है, हमें ऑर्डर डालना है, इंक्वायरी फिर नहीं जनरेट। अभी कोटेशन हम लोग देंगे तो प्राइसिंग के लिए कोटेशन और इंक्वायरी यदि आपका प्री सेल जैसा है, तो नई पार्टी है उसने मांगा है प्राइस, हमने प्रोडक्ट का प्राइस दिया, नेगोशिएट होगा, फाइनल कोड क्या करेंगे वो सब। यस, हाँ यदि रेगुलर है, काफी फ्रीक्वेंट है, तो आप सिस्टम में रजिस्टर प्रोसेस है जी, आप डायरेक्ट भी जी। फर्स्ट जो इंक्वायरी कोटेशन इज लाइक आपका प्री सेल्स का है, ऑर्डर के पहले, ऑर्डर जब तक मतलब पीओ नहीं आ जाता उसके पहले क्या वो आपको रिकॉर्ड, करेक्ट, वो आप इसमें फीड करके रख सकते हैं। इंटरनल है जी, इंटरनली रहेगी पूरा, मतलब आपके पास एक रहेगा कि ये इंक्वायरी आई थी, उसने इंटरेस्ट दिखाया था, फिर आपने जो कोटेशन दिया। और यदि पीओ है तो कोटेशन की बात की जो स्टेप है ऑर्डर, आप वहां से सीधे ओके जो रेगुलर कस्टमर है वो पीओ ही देते हैं, तो सीधे ऑर्डर से इशू। ओके, जस्ट क्लिक ऑन द कॉपी। तो here I will write the reference rate। ये स्क्रीन आपको दिख रहा होगा कि लाइक रेगुलर है, प्रीवियस स्क्रीन की तरह ही, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ओनली द वैलिडिटी डेट इसमें रहती है, लाइक इंक्वायरी तो एक फ्रेश नॉट लीगल एग्रीमेंट एक तरीके से हो गया जो कि इंटरेस्ट दिखाया कस्टमर ने। ये आपने एक तरीके से प्राइसिंग जो डिस्कस किया है, टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस किया है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, द मटेरियल, द सर्विसेज, तो वो सब इसमें रहता है। तो इसका मैं इनपुट कर देता हूँ, just press enter। okay, this one is the, यहाँ पे the same process it will follow in completion log। here you can see the fields, यहाँ पे मैंने कुछ input नहीं किया अभी, तो these are the things which are pending। once I input here, प्राइसिंग करते हैं कस्टमर वो इसमें ओके, बेसिकली जो भी ऑर्डर अपने रहते हैं उसमें ज्यादा डेटा अपना मास्टर डेटा से भी आता है, कस्टमर मास्टर से भी, जैसे शिपिंग डेटा है, ये भी एक शिपिंग कंडीशन जो वहां मेंटेन रहती है वहां से पिक होती है। ठीक है, देन आफ्टर अगेन आप इनकम्प्लीशन करिए। यहाँ पे देखिए अभी इनको टर्म्स मेंशन नहीं है, ये भी आपका कस्टमर मास्टर से ही आता है। वैल्यू मास्टर में फिक्स है, रेगुलर टर्म्स है, तो वो डेटा मास्टर से आ जाए, तो फिक्स नहीं है, वो ऑर्डर बनाने के टाइम या पोजीशन बनाने के टाइम भी कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे एक डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट करके आ गया यहाँ पे, दैट मीन्स फ्रॉम द बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखिए नथिंग इज पेंडिंग, इफ एडिशनल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड डेफिनेटली आप इनपुट कर सकते हो। द सेव दिस विल आल्सो जनरेट अ डॉक्यूमेंट नंबर फॉर दिस। यहाँ पे आप देखेंगे 2 सीरीज का है एंडिंग विद 3, थर्ड वन। ओके, टू डिस्प्ले इट गो टू द डिस्प्ले वन, यू कैन चेक द डिटेल्स आउट हियर। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना आएगा विच इज सेल्स ऑर्डर का, जो कि आप आई थिंक रेगुलर अभी प्रोसेस करते हो। सॉरी, तो यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज अ टाइल विच इज मेंशन्ड हियर मैनेज सेल्स ऑर्डर करके। तो मैनेज सेल्स ऑर्डर में जब आप क्लिक करेंगे तो हियर यू विल फाइंड द क्रिएट ऑप्शन। वंस यू क्लिक ऑन दिस,
यहाँ पे भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, स्क्रीन आपको विजिबल सेम रहेगी यहाँ पे भी 18 10 10। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन जो आपने देखा है इनपुट क्या है? ये आपका बेसिकली जो कंपनी कोड का रहता है वही सेम अभी रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हाँ जी, हाँ जी, जो डिसाइड होगा उसी बेसिस पे ये जस्ट। ये हमारा कंपनी का नंबर होगा। हाँ जी अभी हम जो भी कुछ नया क्रिएट करेंगे तो हम ये ऑर्गेनाइजेशन नंबर डालेंगे जो कुछ जी, डिपेंडिंग ऑन जो आपकी, provide होगा। हाँ सैप से प्रोवाइड होगा, जो भी आपका फाइनलाइज होगा, जो हम लोग मैप करेंगे वही आपका शो करेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है बेसिकली कि आपका सिस्टम है, कंपनी है, उसको हम सिस्टम में मैप करते हैं। तो जैसे कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए हमने कंपनी को 1000 कोड दे दिए, तो 1000 कोड के अंदर यदि मेरे एक सेल्स का है, एक ही मान के चलते हैं कि यदि 2 बिजनेस लाइन है तो 2 रहेंगे, एक सेल्स है तो एक सेल्स का कोड बनता है, या सेम रहेगा या कोड थोड़ा अलग रह सकता है। वो कोड आपका जितना भी सेल्स का एक्टिविटी है वो पूरा सेल्स का एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है नेसेसरी, उसके लिए हम ये कोड जनरेट करते हैं। Correct. और ये कोड के साथ में फिर आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन मोड है वो मैप होगा, जो भी प्रोडक्ट लाइन से वो मैप होगी। तो जो नीचे आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल देख रहे हैं 10, ये डोमेस्टिक सेल में आ जाएगा, उसके अंदर कुछ बाइफर्केशन है तो वो 20 में आ जाएगा। करेक्ट। डोमेस्टिक के अलावा यदि ऐसी है सप्लाई या कुछ और सप्लाई है तो वैसे कोड्स जनरेट हो जाएंगे। मोड ऑफ सेल के हिसाब से ऑनलाइन सेल है तो एक और मोड आ जाएगा ऐसा। तो जब भी आप वो उस तरह की सेल करेंगे आपका वो नंबर चेंज होता जाएगा। सेल्स यूनिट एक ही रहेगी क्योंकि मेजर है वो सबसे ऊपर लेवल पे रहती है, रिपोर्टिंग और सारा डेटा उस पे ही जाता है सिस्टम के अंदर। फिर डिवीजन इज मेरा प्रोडक्ट लाइन, मेरे क्या क्या प्रोडक्ट है ग्रुप्स वो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ट्रांजेक्शन मतलब सिस्टम में हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं, जब भी कोई एंट्री डालते हैं वो ट्रांजेक्शन की ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और ऑर्डर टाइप जो है वो सेल ऑर्डर टाइप है। कौन सा डॉक्यूमेंट मतलब हम जो भी ट्रांजेक्शन इसमें करते हैं वो एक रिकॉर्ड जैसा स्टोर हो जाता है, उस रिकॉर्ड को होल्ड करने के लिए वो ऑर्डर टाइप रहता है। ये अभी सेल ऑर्डर बना रहे ऑर्डर है, डेबिट नोट बनाएंगे डीआर हो जाएगा, क्रेडिट नोट इशू होगा सीआर हो जाएगा, रिटर्न होगा तो वो चेंज होता जाएगा। तो रिकॉर्ड्स उसके अंदर स्टोर होते जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग फॉलो करेंगे विद द क्रिएट विद रेफरेंस, बिकॉज जो भी डिटेल्स हम लोग ने इनपुट की थी प्रीवियसली दैट विल बी फॉलोड विद दिस वन। तो क्रिएट विद रेफरेंस में अगर हम लोग जाएंगे, दूसरी चीज अगर यहाँ पे नहीं आप देख पा रहे हैं, यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट हेयर मैनेज कोटेशंस पे जाके वापस गो पे करेंगे तो इट विल गिव यू द लाइक जो भी आपके रिसेंटली क्रिएटेड कोटेशंस हैं, यहाँ पे से भी आप रिफर कर सकते हैं नंबर प्रीवियस विंडो पे जाके। ओके, सर्च किया मैंने, थर्ड था, कॉपी किया, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई उसके फॉरवर्ड। देन हियर आई कैन राइट सम सेल्स डेट। ये स्क्रीन बेसिकली मोर लाइकली आपकी सेम ही रहेगी इन ऑल द प्रोसेस। यहाँ पे मैंने 50 क्वांटिटीज का इनपुट किया है। सेम हियर आप जैसे शिपिंग है, प्लांट है, दिस डिटेल्स आर देयर इन कंप्लीशन प्रोसेस, इनकोटम इज मिसिंग। ये अगर मैं कस्टमर मास्टर मेंटेन कर दूंगा तो इट विल नॉट आस्क यू अगेन। अगर आप लोग करेक्ट ऑटो फिल हो जाएगा, जैसे पेमेंट टर्म्स का भी है ऑटो फिल हो जाएगा। वन आईडी का मीन्स नहीं, वो कोई भी कर सकता है। हाँ, कोई भी कर सकता है, मीन्स आप भी कर सकते हो, एक्सेस सर भी कर सकते हैं, मीन्स बैठे हैं यहाँ पे, और भी एनी अदर जो जिसको भी प्रोसेस करना है। नहीं नहीं नहीं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। अभी यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं सेव करता हूँ तो हेयर इज अ क्रेडिट मैनेजमेंट विच इज एक्टिव आउट हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि लाइक क्रेडिट लिमिट 1000 का था, एक्सीडेड बाई इतना हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं कंटिन्यू करूंगा इट विल अलाउ मी टू लाइक सेव द सेल्स ऑर्डर, जो कि 19 यहाँ पे नंबर जनरेट हुआ है। डिस्प्ले मोड में आपकी जाके यहाँ पे सेल्स ऑर्डर ये है, यहाँ पे फील्ड दिस इज द नंबर विच इज जनरेटेड हेयर। ये आपका हो गया कस्टमर, ये रेफरेंस आईडी। ओके, let's go back। नेक्स्ट क्या आपका आएगा,
Next will be the delivery dispatch. Customer documentation, customer number. नहीं, आप कस्टमर रेफरेंस जो सेल्स ऑर्डर है ना, वहां पे आप मेंशन कर सकते हो नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे देखिए आप, वहाँ पर आप अपना वो उसका हाँ ये देखिए यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं रेफरेंस नंबर, जो भी आप जिस, यहाँ पर आप कस्टमर का पीओ नंबर दे। ओके ठीक है। नेक्स्ट मैं पढ़ूंगा डिस्पैच की तरफ। क्रिएट आउटबाउंड डिलीवरीज करके है टाइल, जो कि अवेलेबल रहेगा आपके स्क्रीन पे। तो 18 नंबर है यहाँ पे देखिए, ठीक है। अभी अगर फिर से आपको देखना है कि लाइक कौन सा था वो ऑर्डर जो कि आपने अभी क्रिएट किया था, प्रीवियस टाइल्स पे जाइए, वो ऑप्शन करिए। यहाँ पे दिखेगा आपको इन प्रोसेस 19 नंबर, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज वो अभी एक्टिव नहीं है, अप्रूव नहीं है बेसिकली। 1 मिनट, एक बार फिर से। जस्ट अ मिनट, वो नेट तो वो कस्टमर के बेसिस पे रहेगा। कस्टमर को आप मतलब कोई कस्टमर है, उसको लिमिट आपने प्रोवाइड की है कि इतना रहेगा, तो उसकी अगर बियॉन्ड जाएगा तो देयर विल सर्टेन अप्रूवल जो कि रहेगा, अप्रूव कर सकेगा, उसके बाद ही प्रोसेस होगा नेक्स्ट आपका। मतलब ऑर्डर तो आप बना दोगे, बट आगे जैसे डिस्पैच हो गया, इनवॉइस हो गया, वो आप नहीं बना सकते हो अनलेस और अनटिल इट इज अप्रूव्ड, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अभी वो नहीं दिखा रहा है, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे एक आपका टाइल है मैनेज डॉक्यूमेंट क्रेडिट डिसीजंस करके। जब आप गो करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे एक ब्लॉक्ड करके 1 दिखा रहा है, विच इज द सेम नंबर जो हम लोगों ने generate किया था एज अ सेल्स ऑर्डर 19। यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए, जस्ट क्लिक ऑन द रिलीज 1, ओके। यहाँ पे आप अप्रूवल नोट डाल सकते हैं लाइक द टेस्ट अप्रूवल और द अप्रूव्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। रिलीज, ये रिलीज परफॉर्म्ड बाय दिस वन, मेरा आईडी, ओके। नाउ अगेन यहाँ पे अगर गो करेंगे इट विल शो यू 0 हेयर, ओके। तो 0 मीन्स नथिंग इज ब्लॉट करेंटली। अभी अगर मैं क्रिएट आउटबाउंड डिलीवरी पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे 19 यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज इट इज अप्रूव्ड। अगर ये आपका हायरार्की में नहीं है, उसमें लो में है या तो मीडियम में है या हाई रिस्क है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे एक्शन इंप्लीमेंट होगा। वंस यू सेलेक्ट दिस, क्रिएट डिलीवरीज, लॉग क्रिएटेड, गो टू द डिस्प्ले लॉग। डिस्प्ले लॉग पे आप जब जाएंगे तो हेयर इज द डिलीवरी नंबर और द डिस्पैच नंबर विच इज जनरेटेड हेयर, ठीक है। तो वंस यू क्लिक ऑन दिस, it will take you to the change outbound delivery. थोड़ा स्लो है, ओके। सो यहाँ फाइंड करेंगे कि जो भी आपने डिटेल्स इनपुट की थी इन द ऑर्डर फ्रॉम द कोटेशन, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे करेक्ट, ओके। देन आफ्टर द पिकिंग स्टेटस, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि नॉट येट पिक्ड, जैसे मैंने 50 इनपुट किया, इट हैज शोड फुली पिक्ड, okay. You can also save here if everything is completed. The most important thing is PGI, post code issue, means the जो product है that has reached to the customer, ठीक है। PGI मैंने किया यहाँ पे, okay. Here you can see the outbound delivery number 17, saved material document कितना, ठीक है, exit। अभी ये ऑर्डर नंबर जो है, ये अगर मैं ओपन करूं, इसका डॉक्यूमेंट फ्लो अगर मैं देखना चाहता हूं, तो हियर इज द डॉक्यूमेंट फ्लो विच इज अवेलेबल। ये आपको सीक्वेंस पूरा बताएगा कि इंक्वायरी, कोटेशन, ऑर्डर,
आउटबाउंड डिलीवरी, पिकिंग रिक्वेस्ट और गुड्स इशू, जो कि आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट इसमें जनरेट किया है, ठीक है। जो सेल ऑर्डर से है पता है, वेरी गुड क्वेश्चन। ऑर्डर से आगे का फ्लो रहेगा। गुड्स इशू जो मेंशन कर रहे हैं, गुड्स इशू इज मेरा जो फिजिकल स्टॉक माइनस होगा सिस्टम के स्टॉक, जब वो बाहर जा रही है गाड़ी उस टाइम। तो पीजीआई की आप डिलीवरी बना के रखेंगे स्टॉक से माइनस, हाँ इनवॉइसिंग के लिए नेक्स्ट यस ऑटोमेटिक वो रिड्यूस हो जाएगा वहां से इन्वेंटरी से। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड आपने डिस्पैच किया अभी। नाउ द पता चल गया, एक चीज पता चल गई, इसमें नेट चाहिए है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं बिलिंग पे। तो क्रिएट बिलिंग डॉक्यूमेंट करके आपका रहेगा। ओके, इफ यू वांट टू लुक लाइक कौन सा था आपका ऑर्डर जो फ्लो है, यहाँ पे डिलीवरी नंबर है 17, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इट इज सेम एज 71। अगर इफ यू वांट टू हैव लाइक कि कौन सा डिलीवरी नंबर यू नॉट श्योर, यू कैन ऑलवेज हैव प्रीवियस टाइल्स ओपन इन अ डिफरेंट विंडो, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा बिलिंग सेटिंग्स में। बिलिंग सेटिंग्स ऑल्सो द इंपॉर्टेंट वन, सेट बिलिंग डेट एंड टाइप बिफोर, दिस विल अलाउ कि कौन सा बिलिंग टाइप आप वहां पे सेलेक्ट करेंगे, लाइक द क्रेडिट मेमो जो सीआर रहता है, डेबिट मेमो डीआर रहेगा आपका, और नॉर्मल जो स्टैंडर्ड रहता है वो F2 रहता है आपका, ठीक है। क्रिएट सेपरेट बिलिंग डॉक्यूमेंट, इसको ऑफ रहना है। ऑटोमेटिकली पोस्टिंग ये ऑफ रहेगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एनीवेज जनरेट करेगा, बट वंस यू हैव टू लुक इनटू दिस कि क्या चीजें ऑन है क्या चीजें ऑफ हैं। ओके, क्रिएट बिलिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टाइप एंड विद द डिस्क्रिप्शन। ओके, दिस वन इज द वन जो कि मैं लूंगा यहाँ पे F2 एंड द डेट, आज की मैं फिर से नेट गया। ओके, ओके पे मैंने क्लिक किया। ऐसे ठीक है। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आवाज ऑडिबल है क्या? हेलो, Yes, sir. ऑडिबल है। विजिबल है ना स्क्रीन? बीच में कुछ लैग तो नहीं था ना? नहीं नहीं नहीं। ओके ओके जी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिलिंग डॉक्यूमेंट एक आएगा जो कि टेम्पररी करंटली यहाँ पे दिखा रहा है आपको, टेम्पररी डॉक्यूमेंट विच इज जनरेटेड। यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं डिटेल्स जो भी आपने इनपुट की हैं रिलेटेड टू द मटेरियल, ठीक है। एक्चुअली नेट थोड़ा स्लो है तो मे बी लैग हो सकता है, जस्ट लेट मी नो अगर यहाँ पे कोई किसी तरीके का लैग है। सर सॉरी टू इंटरप्ट, नुसरत जी होंगे ना वहाँ पे? हमारा कोड क्या है? सर नुसरत जी होंगे वहाँ पे? वो आपका जब मास्टर डेटा अपलोड होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे आप ही लोग का है। हेलो सर, आवाज आ रही है? सैंपल लिया हुआ है, आपको ट्रांजैक्शन दिखाना था तो उस बेसिस पे। हेलो जी, अभी वो 13 है, वो 13 जो दिख रहा है वो कोड बना है। नहीं अभी डिस्क्रिप्शन में भी सेम रखा है, नंबर अलग है। ठीक है, मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक नंबर यहाँ पे जनरेट हुआ है विच इज सेम एज दैट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। नाउ वहां पे मैं आपको याद होगा देयर वाज एन ऑप्शन जो कि मैंने ऑफ किया था फॉर द ऑटोमेटिक। हेलो
हाँ रितेश, एक्चुअली Yes, sir. अविनाश जी कुछ कह रहे थे शायद। रुद्रज जी हैं सर? Oh, sorry, please. सर रुद्रज जी को एक मैसेज देना था एक्चुअली, एआर नहीं की सर, नुद्रा सर ट्रेनिंग नहीं, अभी यहाँ पे बताइए प्लीज। वो एक्चुअली एआर की ट्रेनिंग इसी टाइम रखी थी ना, तो अभी नीलज जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला था कि मैसेज दे दें, वो ट्रेनिंग डिले करनी पड़ेगी ना, सारी टीम तो यही है जो एआर की ट्रेनिंग ले रही है। जी वो हाँ इन्फॉर्म करते हैं, नीला अरेंज कर देगा, चेंज करेगा शिफ्ट टाइम कर देगा। ठीक है अविनाश जी, आप तो सचिन जी को कंटिन्यू बोल करिए, देंगे। मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ बात करके। हाँ ठीक है अपडेट कर लीजिए, ठीक है, ओके। ठीक है ठीक, कैरी ऑन ठीक रितेश। है, मैसेज कर दो, नीला को मैसेज कर दो, कुछ मीटिंग रखा होगा, क्लैश होगा कुछ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे डॉकिंग फ्लो, आप एक मिनट में दिखाता हूँ। ठीक है, गोइंग टू द डॉक्यूमेंट फ्लो। अभी इनवॉइस हम लोग ने रिलीज नहीं किया है, रिलीज टू अकाउंटिंग विच इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनवॉइस नंबर ही जनरेटेड है सिर्फ, विच इज नॉट गोइंग टू द फाइनेंस। तो वंस यू क्लिक हियर पोस्ट बिलिंग डॉक्यूमेंट, लेट्स से सही चाहिए। ठीक है, इनवॉइस जनरेट करने के टाइम पर बिलिंग वाला है, अप्रूव करेगा। एक जस्ट इनिशियल दिया है कि कुछ दिन आप चाहिए तो वेरीफाई कर लें, करें। एडिट ऑप्शन नहीं रहता है इनवॉइस में नहीं। इनवॉइस में देर इज ऑप्शन ऑफ एडिट। फिर तो प्राइस वेरीफाई करना है। हाँ प्राइस प्राइस वेरीफाई करना, प्राइस वेरीफाई कर देता है तो न्यू सिस्टम में है। इसका प्राइस वेरीफाई नहीं हुआ है तो इसका अप्रूवल चाहिए। नहीं, वो तो सेल्स ऑर्डर में है ही आई थिंक। ये जस्ट एक स्टेप है, ऑप्शनल है या ये ऑप्शनल है, नॉट मैंडेटरी, वो आपका डायरेक्टली पोस्ट डायरेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जनरल एंट्री आप देखेंगे कि हेलो, यहाँ पे जनरल एंट्री विल बी क्रिएटेड। तो दिस इज द सीक्वेंस जो कि अभी हम लोगों ने प्रोसेस किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंक्वायरी से इनवॉइस तक की पूरा। ठीक है, इतना क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक एडिशनल दो चीजें हैं। करेक्ट, पहले ऑर्डर बनेगा, डिस्पैच एक्टिविटी के लिए डिस्पैच डॉक्यूमेंट बनेगा, कुछ मूवमेंट होगा, फिर बिलिंग के पास आएगा। ऑर्डर से डायरेक्ट नहीं जाएगा, बिलिंग मटेरियल मूवमेंट है, सर्विस है तो डायरेक्ट जा सकते हैं। डिस्पैच एक्टिविटी, ऑर्डर डिलीवरी इनवॉइस, उसके बाद बिलिंग। इन दिस प्रोसेस कोई क्वेश्चन है क्या आपके एंड से, इन द पैनल मेंबर्स? ओके, प्रोसीड। सर इसमें ई इनवॉइस एंड ई वे बिल का फंक्शन नहीं अभी तक ऐड किया गया है। ईवे बिल का अभी यहाँ पे अभी इसमें नहीं है, लेकिन आपके इनवॉइस के बाद इनवॉइसिंग और ई बिल दोनों रहेगा। अभी इसका डिस्कशन हम करेंगे, बेसिकली जो कल एक सैंपल मिला है उसके रिलेटेड अभी डिस्कशन करेंगे। सर्विस प्रोवाइडर कौन है वो सारी इंफॉर्मेशन लगेगी, एंड दैट विल बी पोस्ट इनवॉइस एक्टिविटी, जैसा अभी आपका होता है इनवॉइस के बाद ई बिल और IRN जनरेशन, सेम को प्रोसेस रहेगा। प्लस TCS भी है कंपोनेंट, यदि तो TCS विल आल्सो बी पार्ट ऑफ दिस। जब भी आपका 50 की जो लिमिट है उसके ऊपर जाएगा तो TCS भी आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ऑल मैंडेटरी फंक्शंस आर अवेलेबल एंड विल बी पार्ट ऑफ। तो अभी इसमें दिस इज अ सैंपल डेमोन्स्ट्रेशन साइकिल, तो इसमें ई बिल और IRN अभी इंटीग्रेटेड नहीं है। जब आपका आएगा एक्चुअली इसमें तो इंटीग्रेशन करके ई बिल और IRN जनरेट हो। 1 मिनट सर, इसका सर यहाँ पे भी ओपन कर लेंगे, आई थिंक वो बेटर है। अभी तो सैंपल देखो। अभी ये ट्रांजैक्शन होने के बाद देयर इज अ सैंपल इनवॉइस है अपने पास, तो उसके रिलेटेड भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो आपका लाइक इनवॉइसिंग है, ई वे बिल का है, ये सब उसमें डिस्कशन होगा। ओके, TCS का पॉइंट भी सर इसमें डिस्कशन किया जाएगा।
हाँ जी, उसके रिलेटेड भी वही कुछ पॉइंट्स हैं। मैं डेफिनेटली अभी ये शेयर करूंगा जो आपका सैंपल इनवॉइस है जो अभी करंटली आप प्रोसेस करते हो, तो वो डिस्कशन भी हम लोग करेंगे एट द एंड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। ओके। इसमें इसमें टीसीएस पार्ट में ही रहता है। पार्ट में मतलब कस्टमर से उसका एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन है। यदि कस्टमर लाइबल है, कस्टमर टीसीएस केस में आ रहा है, मास्टर में मेंटेनेंस है, वहां से वो एक्टिव रहता है। और जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होगा, ट्रांजेक्शन का अमाउंट सिस्टम में एक्यूमुलेट होता जाएगा। जब भी लिमिट से ऊपर होता है, इनवॉइस में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा टीसीएस का अमाउंट। सो बाय डिफॉल्ट आपको ऑर्डर में वैल्यू दिखेगी, लेकिन जब तक लिमिट नहीं क्रॉस हो जाएगी तब तक वो इनवॉइस में टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो टीसीएस इज पार्ट ऑफ। और यदि जो नहीं आएंगे उसमें कुछ एक्सेप्शन में है, तो वो इंडिकेटर है कस्टमर मास्टर के अंदर, वो इंडिकेटर हम वापस अपडेट कर देंगे, तो फिर टीसीएस आगे उस कस्टमर को नहीं लगेगा। तो ये पार्ट ऑफ दी प्रोसेस है वो फॉर मास्टर मेंटेनेंस। तो सेफ ही है, लेकिन तो सही स्क्रैप की पार्टी है ना। वो वॉल, हाँ, स्क्रैप, स्क्रैप का मेंटेनेंस अलग है, तो उसका सेपरेट रहता है। मैंने नॉर्मल टीसीएस में नहीं लगता है। तो जो इसमें प्राइसिंग स्ट्रक्चर होता है सेल्स के अंदर, तो प्राइसिंग स्ट्रक्चर में जो स्क्रैप का रहेगा वो प्राइसिंग अलग रहेगा। उसमें नॉर्मल टीसीएस कस्टमर वाला पार्ट है, जो उसका स्पेशल टीसीएस है पार्ट रहेगा। और सेल में हमारा नॉर्मल टीसीएस। प्रोसेस में फर्क नहीं आएगा, स्क्रैप भी सेम ऑर्डर डिलीवरी बिलिंग रहेगा। ओनली जो आपका ऑर्डर टाइप है जो हमने यहाँ हुआ है वो में भी चेंज हो, और मटेरियल जो स्क्रैप है, यदि सेम कोड स्क्रैप में जा रहा है सेम कोड आएगा, प्राइस आपका डिफरेंस होगा, बट प्रोसेस ये जो हमने भी देखी थी वो। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड विल टेक अप दिस प्रोसेस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइक कस्टमर रिटर्न्स का रहेगा, which will be created with reference to the invoice, return delivery, post code receipt, and the credit note. Okay. So for this also यहाँ पे भी एक टाइल्स रहेगा आपके पास अवेलेबल देयर इन द सिस्टम, तो मैनेज कस्टमर रिटर्न्स करके। ओके, तो फॉर रेफरेंस ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे देयर इज अ डॉक्यूमेंट फ्लो which we have processed till now. Okay, so next I will process with the return process. 1 minute, it will take some time to load. ये नंबर आप देखेंगे, these are the numbers which are shown here, how many documents have been processed. So once you click on this, okay, if you click on go, so it will give you the list of means the orders which are created, and once you click on create, okay, it will give you the invoice or the reference documents जो आपको consider करने हैं for creation of the return order. Okay, so the first one is this one. So just for the reference I'll show you कौन सा था invoice. Here is the one जो कि हम लोगों ने process किया था from the starting, and this is the number generated 31. Okay, so once you click on the create, it will give you the return order reason. जैसे I have selected here the order quantity is too much, the quantity which will be returned here like 2. Just click on the create option. Once you click on the create option, it will take you to the नया screen पे आपको ले जाएगा. It will take some time to get the things loaded here. You can write here for the customer reference whatever the details will be required from your end. आप लिख सकते हैं यहाँ पे. Okay, so in this one you have to select like immediate move to the free available stock or receive to the plant. Okay, just go back
There you will find the two details I mentioned, like credit memo 100% that decide later. This will create, you have to select here the create a credit memo request. Okay. Once you click on this, other important thing is आप देखेंगे कि रिटर्न जो कि ऑर्डर है जो कि डॉक्यूमेंट टाइप है यहाँ पे आपका आ रहा है. ओके. नेक्स्ट एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर इन द आइटम डिटेल्स, द कॉन्टैक्ट, द प्रोसेस फ्लो ऑल्सो जो कि आपने अभी तक की किया, इनवॉइस बना, रिटर्न, स्टैंडर्ड ऑर्डर, देन क्लिक ऑन द सेव एंड रिलीज. सर आपकी स्क्रीन ना लिटिल बिट स्लो प्रोसेसिंग कर रही है सर, तो आगे पीछे वर्डिंग हो रही है सर. ओके. अभी विजिबल है क्या? अभी कौन सी? हेलो सर अभी सॉरी मैनेज कस्टमर रिटर्न. अभी ये मूवमेंट दिख रहा है ना माउस का मेरा जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे? यस सर अभी तो दिख रहा है सर. ओके तो परफेक्ट है. मेरी वो थोड़ा लैग होगा बिकॉज ऑफ द नेट इशू. ओके जस्ट कम बैक, जस्ट क्लिक ऑन द ओके बटन. यहाँ पे आपको दिखेगा कि लाइक देयर इज अ रिटर्न ऑर्डर नंबर which is generated. You can also find the same number which is generated in the document flow. Okay? यहाँ पे रिटर्न ऑर्डर में आपको ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है, will be created, and once you click on this you can also go to the display document, change mode. Okay. Okay. So this one is the process जो हम लोग ने अभी किया. Now the credit note will be generated for the same. तो इसके रेफरेंस में करना है जो हमने रिटर्न ऑर्डर बनाते हैं आप. किया था. करेक्ट. क्या है कि इसके रेफरेंस कभी-कभी कस्टमर को प्राइसिंग मैच नहीं करता है. प्राइसिंग का मॉडिफिकेशन करेक्शन रिक्वेस्ट एक ये है, एक जैसे ये डॉक्यूमेंट हम बना रहे रिटर्न का, वैसे एक करेक्शन रिक्वेस्ट रहता है. इनवॉइस की रेफरेंस से करेक्शन रिक्वेस्ट आएगी, डेबिट लाइन आएगी, क्रेडिट लाइन आएगी. एक लाइन फ्रीज रहेगी, तो सेकंड लाइन आएगी आपकी क्रेडिट, उसमें आप चेंजेस करो प्राइस और वो सेव करेंगे और फिर सीधे क्रेडिट नोट इशू. तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसका क्रेडिट बन जाएगा. रिटर्न करता है तो एक चीज कलेक्शन मैच नहीं करता है, प्राइसिंग मैच नहीं करता है. कस्टमर ऐसे हैं जो हमारे अपने कस्टमर सर्विस सेंटर से वो माल को हमें रिटर्न करते हैं. प्लेस को हम बिल करते हैं तो वो नाम भी रेफरेंस देते हैं कि किस जगह से आप सप्लाई के हम करते हैं. उस केस में विदाउट रेफरेंस रिटर्न के चलो जो मटेरियल रिटर्न है हमारे पास ऑफिस कोड में हम इनको देंगे. तो मटेरियल हम बिजनेस में सेल करते हैं उसी कोड में लेना पड़ेगा तो नया कोड देंगे. दो है, एक तो अभी जो दिखाया रेफरेंस के साथ, जहाँ मुझे पता है ये इनवॉइस से क्या था ओके कंडीशन, तो वो हम इसके रेफरेंस से ले लेंगे. दूसरा है कि बिना रेफरेंस का हमारे पास कुछ रेफरेंस नहीं है और हमें वो रिटर्न लेना है. सर जैसे आपने बताया जैसे हम अपनी जो है सप्लाई को रिवर्स करेंगे इससे, तो इसमें क्या है हम जो अभी तक कर रहे थे ना हमारे जो रिटर्न की जो इन्वेंटरी थी वो अलग कोड में जनरेट होती है. ओके ठीक है. अभी क्या आप जैसे बता रहे हो कि इनवॉइस से हम डिफरेंस लेके बुक लेंगे तो वो उसी की इन्वेंटरी को रिवर्स करेगा. हाँ वो इन्वेंटरी आपकी वापस आएगी, वो सेलेबल उसी कोड में आएगी, लेकिन लोकेशन अलग हो जाएगा, वो ब्लॉक में चला जाएगा. वो मेरा सेलेबल में नहीं आएगा डायरेक्ट, वो स्टॉक मेरा ब्लॉक स्टॉक में चला जाता है. जैसे मैं रिटर्न की गुड्स जो डिलीवरी डॉक्यूमेंट दिखा है ये पिकिंग और रिटर्न डिलीवरी, तो जब भी ये स्टॉक वापस आता है वो सेलेबल में नहीं जाएगा डायरेक्टली. आइडेंटिफाई करने के लिए कॉर्पोरेट कोड भी नहीं सकते मटेरियल के लिए नहीं, वो नहीं सजेस्टेड है क्योंकि कोड इज यूनिक स्टॉक
इसके against में कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए आरटी ऑप्शन लगाया हुआ है रिटर्न आगे आगे पैटर्न कोड से आरटी अभी सेग्रीगेशन नहीं है, अभी सिस्टम में सेग्रीगेशन हो जाएगा स्टोरेज लोकेशन पे। आपका जैसे स्टॉक आएगा वो आप सेल नहीं कर सकते जब तक उस स्टॉक को फाइनल नहीं होगा, स्क्रैप में जाना वापस सेल मिलेगा, जब तक वो स्टॉक यूज नहीं हो सकता, सेम कोड में रहेगा पर वो स्टॉक यूज नहीं है। तो जब वो डिसाइड हो गया कि सेलेबल में आना है तो ट्रांसफर पोस्टिंग होकर सेल स्टॉक में आ जाएगा, सही है, वहां से सेल हो जाएगा। और ये स्क्रैप है तो स्क्रैप ट्रेड में मतलब दो स्क्रीन बना रखी है अभी हमने। एक तो रिटर्न मटेरियल का है, दूसरा शॉर्ट एक्सेस या कोई एडजस्टमेंट वगैरह करना हो तो इसमें अंदर लग गया, उसकी इन्वेंटरी हम कहीं दिखाते नहीं है सिस्टम। हाँ, तो इसमें दो और है, मतलब ये तो मटेरियल मूवमेंट से रिटर्न हो गया। अभी जो मेरा सिर्फ फाइनेंशियल इम्पैक्ट है तो उस केस में क्रेडिट डॉक्यूमेंट बनेगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट रहेगा, क्वांटिटी उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। और फिर उसका डायरेक्ट सीएम, उसमें मटेरियल मूवमेंट बीच में नहीं है, डायरेक्ट सीएम या डेबिट वो मेन डॉक्यूमेंट टाइप के ऊपर है। ओआर लिया, रिटर्न लिया, वैसा सीआर डीआर करके रहेगा। क्रेडिट बनाना है तो क्रेडिट का डॉक्यूमेंट लेंगे, क्रेडिट फाइनेंशियल इम्पैक्ट दिखेगा, डायरेक्ट बिलिंग मतलब अकाउंट का यस और सेम डेबिट नहीं। ओके रिटर्न दो टाइप का हो जाएगा, मटेरियल मूवमेंट विदाउट मटेरियल। और थर्ड जो आप करेक्शन का बोल रहे हैं तो दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। प्राइस ज्यादा को क्या है, कम को क्या, अभी मुझे करेक्शन करनी है, उसकी रेफरेंस लेके नया प्राइस डालेंगे तो डिफरेंशियल अमाउंट आएगा। तो जो आउटकम होगा इधर डेबिट या क्रेडिट कस्टमर को देंगे इन्वेस्टमेंट। ओके सो कोई ना कोई बात नहीं। ओके एनी क्वेश्चंस आपके साइड से? सर एक क्वेश्चन है कि इन केस अगर हमारे यहाँ से जो हम इनवॉइस या डिलीवरी करेंगे उसमें अगर शॉर्ट मटेरियल डिलीवर्ड होता है उस केस को कैसे बुक करेंगे हम अपने? जैसे अभी आपने बताया कि 50 पीस की आपने इनवॉइस करी बट कस्टमर एंड पे 48 पीस ही रिसीव हुए, तो 2 पीस की एंट्री में कैसे दिखाऊंगा उसे? रिटर्न ऑर्डर पे क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। उस पे तो चेंज किया है, हमने फुल लिया, चेंज नहीं चेंज किया अभी तो हम लोग ने रिटर्न में जो देखिए इनवॉइस जो बनाया था हम लोग ने, इट वाज अ 50 क्वांटिटी, करेक्ट? यस सर। हेलो यस सर। ओके यस सर। और दूसरी चीज है, एक मिनट, जो दूसरी चीज है कि रिटर्न ऑर्डर जो हम लोग ने बनाया कितने क्वांटिटी का हम लोग ने बनाया आपने देखा होगा? 2 क्वांटिटी का बनाया था। ओके हाँ जी। हेलो यस सर। यस सर क्लियर है क्या? नहीं सर कह रहे हैं कि सर अभी अपने 50 पीस की इनवॉइस बनाया, 2 पीस का क्रेडिट में अमाउंट को दीजिए। तो वो तो रिजेक्शन माल आया ना वापस, छोटी के सुनो माल वापस आएगा हमारे पास। आप वहां पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जितना भी माल आपका वापस आया जो आपने टोटल इनवॉइस किया था क्वांटिटी, उसके बेसिस पे 2 पीसेस। सर आपका सॉल्व हो गया कि प्रोसेस करें आगे? नहीं सर, एक्चुअल ऐसा है ना, ये तो 2 पीस रिजेक्शन वापस आई है, ये तो फिजिकली मटेरियल आया है ना हमारे पास। हेलो नहीं, ये एंट्री तभी होगी जो फिजिकल आया उतना क्वांटिटी का ही होगा। ये सर आने के बाद में ही, मतलब मटेरियल आपको रिसीव होने के बाद में ही आप सिस्टम में डालेंगे ऑर्डर। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे हमने 50 पीस सेल करे। हेलो ओके जी, आवाज आ रही है? कस्टमर एंड पे 48 कस्टमर एंड पे 48 ही रिसीव हुए, 2 पीस शॉर्ट है। तो इन शॉर्ट के केस में मटेरियल तो हमारे पास वापस आएगा नहीं फिजिकली, तो हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे? आएगा तो कस्टमर को शॉर्ट रिसीव हुआ ना, वो तो आपको आएगा नहीं। फिर आपको यदि इन ट्रांजिट लॉस है तो फिर आपको वो दो क्वांटिटी वापस भेजिए या फिर 2 क्वांटिटी का आपको अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा, सीएन देना पड़ेगा। वो तो 48 ही गई ना, फिजिकल तो 50 गया नहीं, तो 50 फिजिकल तो आएगा नहीं।
इन ट्रांजिट लॉस तो उनको रिसीवमेंट पे है, वो इन्फॉर्म आपको देगा, डेबिट नोट दे देगा। डेबिट नोट करा, तो उसके अगेंस्ट में हम सीएन इशू करते हैं, सीएन आप उसको करें। बट उनका कंसर्न शायद ये है कि हमारे पास जो रिटर्न आएगा उसमें कुछ भी शॉर्ट मिल जाए तो उसके लिए कैसे करेंगे? ये है क्योंकि जितनी उनका फिजिकल कंसर्न ये है, उतने का ही उनका कंसर्न ये है कि हमने जो यहाँ से जो इन्वेंट्री भेज दी 50 भेज दिया, उसमें से वहां से हो गया 2 वापस ठीक है यहाँ से, मतलब हमारे यहाँ पर वो इन्वेंट्री मिली ही नहीं, एक्चुअली फिजिकली है ही नहीं। वो इन्वेंट्री का जो मिसमैच है उसको हम किस तरह एडजस्ट करेंगे? एक दो तो वापस सिस्टम अलाउ नहीं करेगा यदि स्टॉक नहीं आया है किसके, तो आप जो रिटर्न दिखा रहे हैं, अब जो रिटर्न दिखा रहे हैं वो प्रोसेस नहीं होगा। जब तक वो आएगा नहीं आप रिटर्न नहीं दिखा सकते क्योंकि स्टॉक जनरेट हो जाएगा, फिर आपको पता है ये मान जाएगा कि मैंने 2 पीस आया ही नहीं है, तो फिर आप ये नहीं कर तभी पाओगे, तो मुझे वैल्यू का ही होगा, फिर वैल्यू का ही होगा, इन्वेंट्री का इन्वेंट्री आनी पड़ेगी, फिर वो रिटर्न दिखा इसका सर क्लियर हुआ आपका डाउट? ओके सर, प्रोसेस करें आगे क्या? हेलो, ओके सर, ओके ओके ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे या तो क्वांटिटी कमाई बेस्ड ऑन दैट, अगर डायरेक्ट आपको देना है क्रेडिट मेमो और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, दैट आल्सो यू कैन गिव विद द बेस्ड ऑन दीज स्टाइल्स। ओके, तो यहाँ पे just go to this one, go option, create credit memo request. Okay, here you can see the list of जो कि अभी हम लोगों ने जनरेट किया था, credit memo request system generated 27. Here also you will find the same number generated here. Select this one, create this one, credit memo request. Okay, sorry, हाँ रिक्वेस्ट तो बनी हुई है इसके। मेरी लिस्ट में दिख जाएगी उसको। Okay, so this is the tile which will be used here, like the create billing. Okay, so यहाँ पे you can see here the credit memo request already been generated. Just select this one and billing settings. This is also the important one जो कि previous हम लोगों ने जैसे किया था while creating a standard transaction. तो select the billing type. अगर ये off रहेगा, system will not allow you to select the particular transaction जो आपको करना है, whether it's related to the credit note, debit note, or the any other transaction related to the billing. Okay, just click on OK. Select this one. Here you will find यहाँ पे credit memo G2. The same way you can select here debit memo, which is L2. Just click on the OK. Okay, so this one is the temporary one which is available to you, जहाँ पे आपको एक नंबर दिखेगा and you can verify the price and everything out here, and also the process flow is also available here कि invoice है, standard return, credit memo request, and this one is the number जो कि अभी currently हम लोग process कर रहे हैं. Just click on the save button. Here you will see the number which is generated here कि credit memo has been done. Okay, just go to the post billing document और यहाँ पे आप देखेंगे there is a green which is half highlighted. Okay, not clear. Okay, just come back. Document flow.
ओके, तो ये आपका पूरा रहेगा प्रोसेस अभी जो है। ओके, अभी अगर मैं बात करूं लाइक द आउटपुट का देखने का जो है, मैंने जो स्टार्टिंग में क्रिएट किया था इनवॉइस नंबर, फॉर दैट इफ आई वांट टू लुक द आउटपुट कैसे देखेंगे, ठीक है, तो उस पे मैं जाता हूं अभी। जस्ट गो टू द होम स्क्रीन, मैनेज बिलिंग डॉक्यूमेंट्स, वो आप यहां से भी फिल्टर कर सकते हैं, लाइक द बिलिंग डेट है, बिलिंग डॉक्यूमेंट स्टेटस है, अडॉप्ट फिल्टर्स पे अगर क्लिक करेंगे, it will show you the list of means different criterias to look and search for the particular document. Okay, तो इनवॉइस नंबर जो हम लोगों ने जनरेट किया था बेसिकली which was 31 number. Okay, so यहाँ पे here you can find the number also or the document type which you have selected. Okay, 31 which was generated here. So once you click on this, go to this one. Okay, preview button. This is the sample, actually the dummy invoice or the one which I must say dummy invoice which is generated here in the system. So this will be changed based on your requirement and the information which will be provided from your end. Okay, other way to view the invoice, basically I'll tell you one more option, and you can also copy this one. Just come back. Input here. Also, you can search here the billing. 1 minute. If you don't remember the billing document number, also you can search with this option. You can see here. The last one which we have created 32. After that, the credit note which was generated, that is also being created, and having the billing type G2. So this one is the standard one I am taking. Just go inside by pressing enter. यहाँ पे you will find the two options, जो कि एक header related है, other one is the output related. Just click on this, select this one, display document. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं the same it is generated, or you can download there in the system. ये बेसिकली प्रोसेस रहेगा फॉर सीइंग द आउटपुट, ठीक है, ये वाला आपका डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट प्रिंट यहाँ से भी रहेगा, आप सेव भी कर सकते हैं। आपको जो प्रीव्यू आ रहा है वो प्रिंटर को भी जाएगा, सेव भी कर सकते हैं पीडीएफ। बट यहाँ पे आपको एक बार मतलब प्रोसेस पे आना पड़ेगा यहाँ पे, करेक्ट नहीं? ओके, सो once that downloaded, you can have a look. Yeah, this one is there. सैंपल इनवॉइस है, आपका फॉर्मेट जो है ठीक है, सपोज इनवॉइस का गलत निकले तो इसमें का रिवर्स में आपको कैंसिल, हाँ, वो फिर आपका इसके पीछे आयरन ही भी करने के बाद में जो पे डिटेल दिया है ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाए या डालना पड़ेगा? नहीं, वो करेक्शन कौन से लेवल पे होल्ड करना पड़ेगा। यदि डिस्पैच में कुछ करेक्शन है तो रिवर्स इनवॉइस कैलकुलेट, उसके बाद जो गुड्स मूवमेंट हुआ है वो रिवर्स होता है। ये हमने स्टॉक माइनस कर दिया तो स्टॉक में वापस एश दूंगा और फिर मैं डिस्पैच डॉक्यूमेंट में चेंजेस करूंगा। यदि वहां पर नहीं है कुछ तो वो रुक के फिर यदि ऑर्डर में कुछ चेंज करना है तो फिर मैं ऑर्डर में करूंगा, फिर गुड्स इशू करेंगे, फिर सेम इनवॉइस। तो जिस लेवल पे चेंज है वहां ओपन करना पड़ेगा कैंसिल करके वापस आके, और फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट एडिट करके फिर वापस आगे प्रोसेस करेंगे। इसमें कोई अप्रूवल प्रोसेस नहीं होता? अप्रूवल कैंसिलेशन और स्टॉक मूवमेंट का इनवॉइस कैंसिलेशन तो फाइनेंस अप्रूवल विच इज मस्ट, वो कंसेंट तो लेना ही पड़ता है बिकॉज अभी आयरन इवेबल है, उसका टाइम लिमिट के ऊपर से है, वो कंसेंट लेके यू कैन कैंसिल। यदि इमीडिएट करते करते ही तुरंत ध्यान आ गया नहीं गड़बड़ हो गया तो उतना अथॉरिटी रहता है फिर बिलिंग को कि दे कैन कैंसिल, और स्टॉक मूवमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ और इनवॉइस तो करेक्ट so that is as per the privilege and authorization available. सिस्टम में भी वो रहेगा, यदि दो हैं
मतलब ऑथराइजेशन मेन रहता है, यदि आप मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ मेरे से गलती हुई तो आई विल नॉट बी एबल टू, बट जो मेरे सुपीरियर है या बॉस है उनको ऑथराइजेशन रहेगा, ही कैन रिवर्स, फिर आगे का काम मैं करूँ, वैसा वैसा भी कर सकता। तो एक ही जगह पे रहेगा बट सेम पर्सन पे नहीं रह सकते, दे भी सकते हैं नहीं भी, जैसा आपको अप्रूवल का रहेगा उसमें। तो जैसे देखना है आप लोगों को, लाइक द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कौन सा जनरेट हुआ है, दिस इज द नंबर जो कि जनरेट हुआ है। जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस, here you will find the details of the means GST detail. This one is debited, this one is the minus one which is credited. Customer debit to revenue and taxes should be pop up. Okay, so this one is currently. Any further questions in this? Hello. सर आवाज आ रही है? ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. Okay. So going forward, I'll just give you the glimpse of some of the analytical tiles, जो कि better रहेगा for overview of any scenarios जो कि आपने किए हैं, okay, currently. So for example, this one is the tile which is available, sales order fulfillment issue, okay. So this will give you the clear idea of any transaction which is pending or which is incomplete, I must say. अगर रिफ्रेश करूं अपने like words को, okay. So here you will find the two filters. This is taking some time. ये based the internet connectivity पे रहेगा. Just click here, okay. So you can enter here like the document type, the customer reference, the issue which is there, or the item category, sales organization, and sold to party. And based on your requirement, you can save this particular template. Okay. So once I click OK, this will give you currently see अभी यहाँ पे 1810 वाला ही है. So I will just click OK. It will only give me the data which is relevant to 1810. Okay. Here it will provide you the list of charts which are available, like the bar chart, column chart, line chart, and numbers are there. So once I click on this, you can see here the two graphs which are available: delivery issue in the sales order, shipping issue in the sales order. To find the details of the document number which are relevant, just click on this one, settings, select the issue type. You can select based on your requirement what is the best way to like find out which number is which particular document number is pending. You can select the document, sales document, click on OK. Yeah, here you can find the issue name, issue details, the document number is there, shipping issue in delivery 17 number, and delivery issue in sales order. अगर मैं 16 नंबर की बात करूं यहाँ पे जाके, I'll just show you which is pending. 16. Here you can see the मैंने अभी delivery process, dispatch process नहीं किया है. So that's why it is showing there in the analytical app की 16 नंबर का delivery issue अभी नहीं हुआ है. Okay. So this one is the second screen. अगर मैं third screen में आता हूँ, तो here you can also modify the sectors or the fields which are required. Okay. So जैसे issue total हो गया, issue total is mandatory एक तरीके से, net value, requested delivery date, you can remove item issues in the order. You can also segregate based on the distribution channel, division, item category, issues in order. Okay. Sales document. 1 minute. Sales organization also. Once I click OK here, you will find
1 minute, it is taking some time. Screen visible है सबको वहां पे? Hello, just confirm anyone. I think कुछ बोल रहे हैं मे बी. आप लोगों को क्लियर है ना ये? ठीक है, ठीक है. दिस वन इज द सेल्स डॉक्यूमेंट. नंबर सेम यहाँ पे आया था. नाउ अगर मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट करता हूँ लाइक दिस वन 18 नंबर, it will show the only data which is relevant to this particular graph or which is available in front of you. ठीक है. तो here you will find the issue क्या था. अभी again if you will select this, it will deselect this particular category. Again अगर मैं 17 पे क्लिक करूंगा, it will show you the information related to the 17 number. Okay. Same way delivery issue in the sales order यहाँ पे दिखाया. Okay. So this one is the important app which need to be like can be used for any information. Other which you can use basically the sales volume flexible analysis. यहाँ पे here you can write based on your currency which is INR, the organization 1810. Okay, so here you will find the list of data it has shown here. Okay, but the thing is here you need to adopt some filters like the organization. Even though if you are having only एक ही organization then it's okay. अगर नहीं है तो you can add here multiple organizations also based on your requirement. 1810 का यहाँ पे दिखाया हुआ है. Now if I add some additional columns like these are the rows and these are the columns. Once you add here, it will show you like which particular the net value, the sales volume. Okay, so these are basically coming from here. The sales organization, the year of billings, here this one is there. If you want to remove anything, जैसे ये कॉलम्स में है, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, इट विल बी रिमूव्ड. ओके. इफ यू वांट टू हैव अदर डिटेल्स, जैसे आपको देखना है कि लाइक इफ आई से शिपिंग पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, distribution channels there. Okay, so this thing can also be added here like the 10 अपना distribution जो कि direct sales है. This can also be exported. Okay, so just for the reference आप रख सकते हैं अपने पास. देखो प्योर एनालिटिक्स रिपोर्ट पे ट्रांजैक्शन नहीं आएगा. जैसे हमने इसका पिछला वाला देखा, वहां पर मुझे एरर मालूम पड़ रहा है और मैं आगे जाके देख सकता हूँ कि पर्टिकुलर जो भी ऑर्डर है वो किस वजह से रुका हुआ है या क्या इशू है. वो रिपोर्टिंग भी था प्लस इशू भी हमें मालूम पड़ रहा है कि क्या हो रहा है. बट ये जो सेकंड हमने देखा है ये पूरा सेल्स वॉल्यूम का मेरा रिपोर्ट है. तो आप जैसा लेआउट चाहिए, आपको जिस तरह से देखना है, जैसे हम एक्सेल में फिल्टर करते हैं, कॉलम्स ऐड करते हैं, वो आप वहां करके डाउनलोड टू एक्सेल करेंगे, रेडी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगा. या फिर आप यहाँ से ही पाई चार्ट वगैरह करके स्क्रीन से लेकर. So the more you get into this, उतना ही it will be easy for you to understand the layout. मतलब different like जैसे मैंने ये select किया यहाँ पे, no conditions has been found. You can try the multiple options here which are available, and based on that, it will give you the cumulative data which is present here. Okay. एक्सेल जैसे मैक्सिमम ऑप्शन यू विल फाइंड सॉर्टिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, फिल्टर, सारा एक्सेल जैसा ऑप्शन है. प्लस जैसा भी मास्टर में मास्टर डेटा अवेलेबल है, मेरा कस्टमर का बाइफर्केशन जैसा है. यदि मैंने कस्टमर मास्टर अच्छे से मेंटेन किया है कि पर्टिकुलर सेगमेंट ये इंडस्ट्रियल को जा रहा है, व्हाइट गुड्स के लिए कस्टमर है, सेग्रीगेशन पूरा है, तो यहाँ फिल्टर में मुझे कस्टमर ग्रुप, इवन मटेरियल ग्रुप यदि मेंटेन है हमारा प्रॉपर, मटेरियल ग्रुप के ऊपर से क्या सेल हुआ, कस्टमर ग्रुप के ऊपर से क्या सेल हुआ, रीजन पर्टिकुलर चाहिए कस्टमर का, रीजन में लेके सिलेक्शन में आऊंगा तो मुझे उस रीजन में जितने कस्टमर और क्या सेल हुआ बेस्ड ऑन डेट, वो उसमें मैनेज करके देख सकते हैं.
तो जितना भी मेरा मास्टर डेटा में है या ट्रांजेक्शन में डेटा स्टोर हुआ है रीजन वाइज या कस्टमर से, वो सारा डेटा यहाँ एनालिसिस के लिए। Okay, so this you can download and export also based on your requirement. So these things we have covered today. So the same process will be followed for the this one for the debit also. Only the document type will be changed. Okay, there will be nothing in difference into this. So analytical also I have shown you कौन सा रहेगा आपका. Like you can use multiple ones, but जो आपका benefit है like जिसके through आप data मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर द रेलेवेंट. एवरी टाइम सिस्टम में जरूरी नहीं यू कैन एक्सपोर्ट द डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर डे एंड ऑफ द डे, तो दैट यू कैन यूज. नेक्स्ट कौन सा? सिमिलरली ये तो कलेक्टिव रिपोर्ट्स है. आप जैसे ऑर्डर से, तो ऑर्डर का भी इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स है जहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर्स कितने हैं, सेम डिस्पैच का कितना डिस्पैच है, क्या स्टेटस है, कितना पेंडिंग है, बिलिंग के लिए गया कि नहीं गया. और सिमिलरली बिलिंग का रिपोर्ट्स भी, इंडिविजुअल रिपोर्ट्स भी है, प्लस कलेक्टिव रिपोर्ट्स भी है जो हम देख सकते हैं. प्रोसेस सेल्स ऑर्डर हिस्ट्री मतलब जितने भी आपने बनाए. हाँ, हिस्ट्री एज ए लेट में मतलब चेंजेस कितना हो, मतलब चेंजेस आप पूछ रहे हैं कि और नंबर कितने आपने जनरेट किए ना जनरेट किया कस्टमर का कितना ऑर्डर है. हाँ, वो मिल जाएगा. ऑर्डर लिस्ट में जाएंगे आप, ऑर्डर की जो रिपोर्ट है कस्टमर डालेंगे सिलेक्शन में, उसके कितना ऑर्डर करें डेट रेंज के वो आपको मिल जाएगा. पेंडिंग हाँ, उसमें जो लिखा हुआ आपने एक कॉलम था इन प्रोसेस कंप्लीट, वो आता है. कस्टमर वाइज ही जनरेट होता है. हमारे पास हिस्ट्री रहेगी तो हम चेक कर सकते हैं. आप जितना भी ऑर्डर डाल रहे हैं कस्टमर शुरू से आखिर तक क्या हुआ वो आपको ऑर्डर लिस्ट में भी मिलेगा, इवन आपको रिपोर्ट्स में भी मिलेगा. आप ऑर्डर की लिस्ट में जाएंगे, कस्टमर नंबर देंगे, डेट रेंज, वो आपको दिखा देगा कि कितने ऑर्डर बने थे इसमें और क्या स्टेटस. अभी फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगाया, इट इज शोइंग द एन नंबर ऑफ ऑर्डर जो कि हम लोगों ने इनिशियल क्रिएट किया. तो इन प्रोसेस अगर मैं देखूंगा, these are the two orders which are in process. Maybe the different reasons are there. ये जो सोल्ड टू पार्टी लिखा हुआ है ये कस्टमर कोड और नाम है, ZESCU जो डाला हुआ है. तो आप ये कोड भी ऊपर डालेंगे तो उस पर भी फिल्टर कर सकते हैं, या फिर पेंडिंग के हिसाब से देखेंगे तो जहाँ मल्टीपल ट्रांजेक्शन आ जाएंगे तो जितने कस्टमर है तो सोल्ड टू पार्टी में आपके कस्टमर ऊपर फिल्टर है सारे, बीओ से भी सर्च कर सकते हैं. Any further questions in this, like the apps, analytical apps, or for searching any order, the numbers which are generated? Okay. पुराना तो दैट विल बी अ क्वेश्चन कि क्या माइग्रेट होके आएगा सिस्टम, कितना लेट नहीं. पुराना यूजुअली नहीं आएगा. जब डे यू स्टार्ट वहां से आपका हिस्ट्री जब से अपना डेटा आई थिंक जिस दिन से लाइव होगा, हाँ उस दिन से स्टार्ट करने में लाइव होता है. उसके बाद प्रीवियस डाटा कितने साल तक का इसमें अपलोडेड रहेगा ऐसा कुछ प्रीवियस नहीं होगा, फ्रॉम द डे इट स्टार्टेड. इस दिन से उस दिन से स्टार्ट होगा आगे 3 4 साल 5 साल भी चलेगा. आगे देख सकते हैं. हाँ वो रहेगा, जिस दिन से स्टार्ट हुआ उस दिन से होगा. बट दोस एंट्रीज आपके थ्रू प्रोसेस होनी चाहिए, उसमें रिकॉर्ड सेव होना चाहिए. अनलेस और until मतलब ऑर्डर करना हो गया, डिक्लेरेशन बनाया, इंक्वायरी करनी, तो वो डेटा रहेगा. पुराना डेटा में यू नो हाउ डिस्कशन विल हैपन, कैसे जाएगा. फाइनेंसर्स की आई थिंक आती है, फाइनेंस की जितने भी ओपन है वो बोल रहे हैं मेरा फाइनेंस कवर होता है. ये यहीं पे है कि कहाँ पे? कितना वैल्यूज है ओपन और रिसीवेबल पेएबल है, वो पूरा फाइनेंस का डेटा आता है. वो आता है ट्रांजैक्शन मतलब सेल्स ऑर्डर और ये जो ऑलरेडी हो गए वो नहीं. इन प्रोग्रेस जो है वो फाइनेंसेस के पूरे बैलेंसेस वो पूरा आएगा. जो एक्टिव कस्टमर का एक्टिव बैलेंसेस है वो आएगा. ट्रांजैक्शन में जो रनिंग है, जो आधा पार्शियल प्रोसेस हुआ है, वो डेटा दैट मच इधर पीओस ओपन एसओस वो आएंगे, वो ले सकते हैं. मतलब जो लेकिन कंप्लीट हो गया पुराना वो डेटा नहीं लाते हैं. तो यहाँ पे भी किसी ने लॉग इन किया है क्या? जो हम लोग बैठे हैं, किसी ने सिस्टम आपने किया है ना? आपका ये पीसीबी कर गया क्या? नहीं, यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ये देखिए, मे बी मूवमेंट हो रही है मेरे थ्रू ही हो रही है. कौन? आई थिंक किसी ने लॉग इन किया होगा. पीसीबी एक
नहीं वो नहीं दिखेगा मुझे. Okay, so any further questions related to the app which I have shown you or the process? नहीं मेरा नहीं, मेरा पीसी भी कैसे हो जाएगा. चलिए anyways. तो अभी जो प्रोसेस हमने देखी इसके अलावा और कुछ प्रोसेस कैसे ऑर्डर टू बिलिंग में देगा, क्रेडिट नोट देगा, रिटर्न्स देते हैं, डेबिट नोट, एनी अदर प्रोसेस जो आप कर रहे हैं. रिपोर्ट्स तो है, मतलब प्रोसेस रिपोर्ट सेल्स हो गया प्रोसेस तो एक इसके अलावा कुछ करता है मतलब इसमें शो हुआ है लेकिन हम करते हैं. रिपोर्ट्स तो आपकी वो हैं जो आपने ट्रांजैक्शन किया उसको पुल आउट कर रहे हो, बट जो उसके पहले ट्रांजैक्शन है वो कौन कौन से हैं? जैसे अभी मार्केटिंग प्लान करती है उसके लिए वो डिलीवरी प्लान स्ट्रेच का तो डिलीवरी रिक्वेस्ट में जैसे आपने बताया वो ऐसे ही जाएगा या फिर नेक्स्ट जाएगा. डिस्पैच प्लान तो ऑर्डर्स तो बने हैं, उसके बेस पे आपको डिस्पैच प्लान देंगे कि वो उसके हिसाब से वो उतने ऑर्डर सेलेक्ट करेगा. क्या हम डिस्कस करना तो अभी कैसे देते हैं मुझे? तो हम एक शीट बनाते हैं एक्सेल शीट, उसमें सारा कुछ जो होता है उनको डिवीजन अपलोड कर देते हैं. इससे जो डेबिट बनाते हैं ना वो परचेस रिलेटेड भी होता है हमारे यहाँ. जैसे सारी बनती है जो मटेरियल जैसा परचेज किया हमने कुछ माल जो वेंडर से माल लेते हैं और तो वो उसका क्या प्रोसेस तो वेंडर को अब सेल ऑर्डर करके रिटर्न देते हैं. ऐसा भी कुछ होता है. क्वांटिटी का वो तो आपका परचेस के सेलिंग में कवर हो जाएगा. आज बोल रहे हैं वो परचेस में कवर डिस्क्रिप्शन की बात चलती है ना, सेल्स में नहीं है, वो परचेस में आ जाएगा. प्रोक्योरमेंट की बात जाएगी तो वो भी ना हमारे अकाउंट से जाता है. हाँ लेकिन चेतन कल हुआ है मटेरियल का सेशन प्रोक्योरमेंट का. सचिन आप अकाउंट से है ना तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे करना है. प्राइसिंग मिसमैच हुआ, क्वांटिटी मिसमैच वो आपका जो भी परचेस किया है तो क्लियर है, वो आपका फाइनेंस के सेशन में कवर हो जाएगा. जो आपका फाइनेंस का सेशन चल रहा है उसमें वो बता दें. हेलो. यस सर 1 मिनट सर. ये ट्रेडिंग इनवॉइस का कोई अलग प्रोसेस है क्या? ट्रेडिंग इनवॉइस सर 1 मिनट, ऑलरेडी एक अभी बात कर रहे हैं तो आई विल टेक योर कॉल. 1 मिनट सर, जस्ट अ मिनट. आदेश जी बात कर रहे हैं. इंटीग्रेशन यस यस इनको परचेस का भी देंगे. यू कैन जॉइन दिस सेशन. दिन नाम में सॉल्यूशन को बोल के उस सेशन पर करा लीजिए, फाइनेंस के सेशन में करा लीजिए. कि फाइनेंस का अलग चल रहा है वो कभी ऊपर हो रहता है तो उसमें वो फाइनेंस के रिलेटेड जो भी है कस्टमर की क्लियरेंस, कस्टमर का एफआई से जो डायरेक्ट क्रेडिट नोट डेबिट नोट जाएंगे कस्टमर को भी हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं एफआई से, वो वाले फाइनेंस के सेशन में कवर. सेल्स से जो जा रहा है बिलिंग तक फाइनेंस तक वो वाला हमारे सेशन में है. मतलब वो आपका प्योर फाइनेंस हो गया ना, एक तरह से बोले डायरेक्ट वहां से क्रेडिट नोट दे रहे तो प्योर फाइनेंस का एक्टिविटी हो गया. तो उनका ट्रांसैक्शन का प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है इससे. सर कुछ चीजें हैं जैसे डिलीवरी चलान वगैरह है, कुछ वो डिलीवरी चलान बना दिया है, कुछ ऐसी होती है मटेरियल के साथ सपोर्टिंग चीजें जाती हैं प्रिंट आउट्स, उनका डिलीवरी चलान हो गया. और 57 तो बद के होते हैं वो सब. तो अभी प्रिंट आउट्स ये इनवॉइस से प्रिंट है तो सब चले जाते हैं. कुछ है जो भी यहाँ से तो बद के लिए जाता है जॉब वर्क आउटसोर्सिंग तो परचेज का पार्ट होता है. परचेज करें आउटलुक से मतलब कैसे प्रोसेस है. एक्चुअली जो मटेरियल हमारे यहाँ से हम किसी और के यहाँ पे मटेरियल देके बनवाते हैं उसको, हाँ वो मटेरियल हमारे यहाँ से जाता है डिस्ट्रीब्यूशन है उसके यहाँ से, डिस्पैच के यहाँ से जाता है उसको किस हिसाब से वो वापस आएगा फिर जाएगा वापस आएगा. तो वापस आएगा, बनेगा आ जाएगा. तो
वापस आएगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफिस पे से हमने फोकस से परचेज वाले कुछ टाइपिंग आ जाएगा। हाँ। परचेज वाले आ जाएगा, वो लोग परचेज वाले सब कॉन्ट्रैक्ट वो पीओ क्रिएट करेंगे। सब कॉन्स में जाएगा मेरा ऑफिस में। चीजें तो करना पड़ेगा ना। होती है जो आप उसका जो सर्विस चार्ज बनाते तो पीओ से हो जाता है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिलीवरी चालान से जाती है तब पीओ जाएगा। सेल के लिए सेल मतलब ये स्टेशन हाँ एक कंपनी मतलब मैं सेल कर रहा हूँ तो टैक्स इनवॉइस चाहिए उसकी क्या मैं डिलीवरी चलाने के लिए कोई बोले ना वो तो सपोर्टिंग मटेरियल के लिए डिलीवरी चालान जो कुछ ट्रे हो गया या वो हो गया डिलीवरी चालान। अगर मैं उसका जो बात आ ये कस्टमर को आप नहीं दे रहे हैं, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर वेंडर को दे रहे हैं, उसके रिलेटेड आप बोल रहे हैं। तो सर कल है सब कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले हैं इस साइड से सेल्स इनका भी आईडीज लेके डालते हैं सेल्स वाले जो हम डिस्पैच कर रहे हैं ना तो कुछ टीम से जा रहा है डिस्पैच इन्वॉल्व है मतलब डिस्पैच में ये लोग रहेंगे बेसिकली, चाहे परचेज का फाइनेंस से भी और डिस्पैच से लेकर जॉब हर इम्प्लीमेंटेशन का होता है तो कंपनी के अंदर रिस्पांसिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। कल अपने आगे वो इशू होते हैं ओके। जो भी डिस्पैच का इन आउट परचेज वाला तो स्टोर से तो डिस्पैच में कौन कौन देखते हैं आप? बिल बना के अच्छा ये दोनों तो अकाउंटिंग जो इनवॉइसिंग के जो डॉक्यूमेंट निकालते हैं कल के सेशन में ऑर्डर के रिलेटेड कौन देखते हैं? कौन क्रिएट करता है? अच्छा सब लोग आप ही लोग करते हैं और डिलीवरी आप दोनों देखते हैं, डिस्पैच और इनवॉइस का। मतलब कि यही है जितने यहाँ पे बैठे हुए की होल्डर्स आप ही लोग हैं पूरे, है ना? कल के इसमें फिर आप इनको भी कर लीजिए। स्क्रैप भी अगर कोई जाता है बाहर मिल जाएगा ठीक है। एक मिनट सर, इनका भी क्वेश्चन। आदेश जी, हेलो 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 सर, इसका या प्लीज trading- आप बताइए प्लीज। ट्रेडिंग इनवॉइस का प्रोसेस कुछ सेम है या डिफरेंस है कुछ उसका? कौन सा? ट्रेडिंग इनवॉइस, सेल्स के केस में ट्रेडिंग इनवॉइस आप बाहर से प्रोक्योर करेंगे और फिर सेल कर देंगे ना। मेरा मैन्युफैक्चर्ड नहीं है जी, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, प्रोसेस सेम रहेगा, मटेरियल टाइप अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट कोड पे फर्क पड़ता है मटेरियल साइड से कि मैन्युफैक्चरिंग की जगह वो ट्रेडिंग हो जाएगा और प्रोसेस लेकिन सेम रहेगा, ऑर्डर डिस्पैच इनवॉइस। उसका लिंक तो कस्टमर रेफरेंस इनपुट करके दे सकते हैं। कस्टमर ऑर्डर टाइप और सिर्फ वैल्यू वाले जो कुछ मुझे इनवॉइस पार्टी को कोई क्रेडिट नोट्स वगैरह डालने हैं तो उसका भी प्रोसेस सेम उसी सेम इनवॉइस की तरह चलेगा? क्रेडिट नोट डेबिट नोट में दो चीजें हैं। यदि मेरा मटेरियल रिटर्न के अगेंस्ट में है तो हमने जो रिटर्न प्रोसेस देखा, रिटर्न ऑर्डर बनेगा, हाँ, जो वो तो क्वांटिटी ठीक है। वापस आएगी और सीएन बनेगा। यदि एक डायरेक्ट मुझे सिर्फ वैल्यू का करना है। हाँ वैल्यू है तो Penalty इनवॉइस charges। रिक्वेस्ट से डायरेक्ट क्रेडिट मेमो रिक्वेस्ट बनेगी और फिर इनवॉइस, मटेरियल मूवमेंट नहीं आएगा उसमें। ओके, मतलब पेनल्टी के केस में वो दो स्टेप में हो जाएगा जी, वो दो स्टेप में हो जाएगा। And if raw material is sold as such, जी raw material हमने as such सेल कर दिया, कर सकते हैं सर। आरएम को सेल्स के लिए अलाउ करके ऑर्डर मटेरियल डिस्पैच होगा तो मेरा मेन प्रोसेस बेस प्रोसेस सेम ही रहेगा, ऑर्डर डिलीवरी बस वो फिनिश गुड्स की जगह रॉ मटेरियल से कम हो जाएगा आपका। हाँ, मेरा एफजी सोल्ड आइटम की जगह पे आरएम का प्रोडक्ट आ जाएगा बस। ओके ओके। नहीं तो वो फिर हम उसके लिए अलग से कोई कोड बनाएंगे या उसी कोड में हम बेच सकते हैं? आरएम का सेम कोड को भी आप सेल के लिए एक्सटेंड करके, मतलब सेल्स के लिए अलाउ करके हाँ सेम कोड पे भी सेल कर सकते हैं। ओके ओके ओके। तो इसमें ये तो बेसिक प्रोसेस है स्टैंडर्ड। तो सैंपल सेल्स भी है, सैंपल कुछ आता है बाहर, मतलब बेचते होंगे आप लोग लाइक सैंपल सेल्स के लिए भी प्रोसेस सेम रहेगा। अमाउंट जो है वो उसके ऊपर ही मेन अमाउंट और टैक्स। अमाउंट यदि 0 है तो 0 वैल्यू पे चला जाएगा। हाँ एफओसी वगैरह जी, बट मेन प्रोसेस तो रिमेन सेम। दिमाग से तब होगा
हाँ for a extra extra basis या for a type of like वो कर सकते पेश कर दो रिमार्क्स लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस वैसे मतलब कमेंट रिलेटेड टू मटेरियल। yes हाँ वो टेक्स्ट फील्ड्स इसमें रहेंगे। इसमें 3 ऑप्शन है जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट आईडी बनी होती है, टेक्स्ट होते हैं इसमें कर सकते हैं, या फिर एक ऑर्डर रीजन करके फील्ड होती है। ऑर्डर रीजन होते हैं सैंपल जा रहा है या डैमेज वापस है या कुछ जो भी हमारा ऑप्शंस है वो जी। सेलेक्ट कर लेंगे तो वो फिर आगे सारी रिपोर्टिंग कर जाए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यस नीचे वर्जन के नीचे ओके ऑर्डर इसमें वैल्यू नहीं है, अभी कुछ नहीं है। ये फील्ड है ऑर्डर रीजन। यहाँ पर हम कीज बना के रख देंगे, सैंपल है इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है उसमें, ये सेलेक्ट कर लेंगे इस ऑर्डर के टाइम, वो आगे पूरे ट्रांजेक्शन में कैप्चर करेंगे। और कुछ एल्स यस प्लीज। ये टेक्स्ट इसमें आप डबल क्लिक करेंगे और राइट साइड में पैन ओपन होता है, ठीक है, ये फ्री टेक्स्ट अवेलेबल है। तो ये सिर्फ ट्रांजैक्शन में रहता है, रिपोर्टिंग तक ये नहीं जाता है, प्रिंट आउट ले सकते हैं इससे। फर्क इतना ही है, फ्री टेक्स्ट में ट्रांजैक्शन और प्रिंट आउट ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। अभी तो ऑप्शन नहीं है जो मैक्सिमम पॉसिबल दिया हुआ है, कैसे? इंस्ट्रक्शन हेडर्स। टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो ऑर्डर नहीं ये फील्ड्स अभी ये बाय डिफॉल्ट आ रहा है, सिस्टम जनरेटेड है, प्री डिफाइंड है, बट ऐड कर सकते हैं। ये टेक्स्ट मेंशन करके मैंने किया। उससे हम इनवॉइस बनाते हैं एक्सपोर्ट की नोट विदाउट जीएसटी तो सेम रहेगी और अलग से विदाउट जीएसटी एक्सपोर्ट पे ये वाले पार्ट पे फर्क आएगा, प्लस डॉक्यूमेंटेशन पे प्रिंट आउट जो भी है डॉक्यूमेंटेशन इस पे फर्क आएगा। और कस्टमर जो है मेरा टैक्सेबल नहीं रहेगा, जिससे वो टैक्स अमाउंट जो इनवॉइस की सीरीज होगी वो अलग होगी। इनवॉइस सीरीज अलग कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट के कितने ट्रांजैक्शंस आपके एक्सपोर्ट पे तुम 1 मंथ में अगर 8-9 तो हो जाते हैं। और डोमेस्टिक के ज्यादा होते होंगे बस। एक मंथ बट एक्सपोर्ट का कम होते हैं। ओके ठीक है, बस सिर्फ दोनों डोमेस्टिक और ये एक्सपोर्ट नंबर सीरीज अलग तो जैसे अदर कंट्रीज में चलता है सेट तो वहाँ भी तो एक्सपोर्ट का होता है ना, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट होता है, तो आपका प्रोसेस होगा। हाँ प्रोसेस एक्सपोर्ट में भी मेरा डॉक्यूमेंटेशन अलग है, टैक्सेशन का जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। बाकी ऑर्डर इसका कमर्शियल इनवॉइस जो भी उनके प्री पैकिंग पोस्ट पैकेजिंग जो है वो चीजें उस चीज में फर्क पड़ जाता है डोमेस्टिक से, बाकी प्रोसेस सेम है। ओके कस्टमर टैक्सेबल नहीं रहता है, एग्जम्पशन में आता है। तो भी आपके जितने टैक्स नॉर्मल है, जीरो टैक्स भी जाता है या फिर रिबेट है या कुछ उसमें भी ये बेसिक वैल्यू पे जीरो पे जाता है, जीएसटी नहीं है। ये एक्सपोर्ट भी परसेंट वाला रेवेन्यू का निकालते 0.1 प्लस हाँ तो मोबाइल में लगा पड़ता है तो उसकी मेरा उसमें वो तो चीज टैक्स है। तो अभी जितने प्रोसेस दिखाए आपको इंक्लूडिंग द एफओसी का भी और एक्सपोर्ट वो उसमें ऐड हो जाएगा, करेक्ट? ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा स्टॉक ट्रांसफर इन्वेंटरी फोटो कॉपी इस तरह से स्टॉक तो दिखा दो। स्टॉक ट्रांसफर मतलब अपने जो विद इन प्लान एक्सचेंज आने वाला है वो किस हिसाब से होगा। ओके तो स्टॉक ट्रांसफर भी है। स्टॉक ट्रांसफर का तो फिर अभी वो एक्चुअली में जो चलो बॉडी हमारे पास तो लोकेशन तो लोग नहीं होते हैं ना, वो नहीं मतलब जैसे यहाँ से हम सपोज गोवा भेज रहे हैं या गति जा रहा प्लांट टू प्लांट होगा ना। वो तो यूज नहीं हो रहा स्टॉक ट्रांसफर है क्योंकि आपका ऐसे प्रोसेस क्या सेल परचेज दिखा जीएसटी में बंदी हो गया स्टॉक ट्रांसफर। तो एक प्रोसेस वो भी आएगी फिर मेरी जो इंटरनल सेल है इंटर कंपनी का एसटीओ नहीं है, सेल परचेज बोल रहे हैं, क्यों नहीं? ये चेक कर लेंगे। कंपनी का तो सेल
नहीं रेस्टिंग वहाँ से लेना देना करेगा एज ए कस्टमर वेंडर नॉर्मल से ओके मतलब कंपनी का ऐसा कस्टमर बना के सेल करना है नॉर्मल से ओके कुछ जीएसटी स्टेट करके करता है तो ये देखिए नेक्स्ट नॉर्मल से आई थिंक एक बार यहाँ पे बोल देन आफ्टर हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे सर एनी अदर क्वेश्चंस आपके तरफ से दोज हु आर देयर इन द पैनल मेंबर्स क्योंकि यहाँ पे तो 5 लोग हैं दे आर एक्टिव हेलो नो सर सर ओके ओके एनी एडिशनल प्रोसेस बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड हियर आल्सो तो आई थिंक आपको ऑडिबल होगा उस समय कोई एडिशनल प्रोसेसेस जो आपके अपार्ट फ्रॉम जैसे डोमेस्टिक का है एक्सपोर्ट्स का है आपका रिटर्न्स है क्रेडिट है डेबिट है सैंपल है स्क्रैप है यही है ना सर फिर सर एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज यस सर यही था अभी तक तो सर ठीक है मैं आपको एक ओके सो अगर हम लोग स्टॉक का देखें देयर इज अ ऐप व्हिच इज अवेलेबल तो दैट कैन आल्सो बी सीन ट्रेनिंग का सेशन शेड्यूल कर दिया ट्रेनिंग का सेशन शेड्यूल किया है इसके लिए ये एक बार देख लीजिए उसके बाद में यहाँ पे यू कैन फाइंड द लिस्ट ऑफ द स्टॉक which is available okay so for example I can filter based on the material जो कि अभी है and which is currently in process जो उन्होंने transactions किए हैं तो material description है तो here you can see the unrestricted ones which are there and the blocked stock which is currently there block to unrestricted वाला भी बताना ये एफसी भरने के बाद ये आपको इसमें दिखेगा जो कुछ क्वालिटी में वो क्वालिटी कॉलम में दिखेगा ठीक है जैसे क्वालिटी क्लियर होता जाएगा ये अनरिस्ट्रिक्टेड का कॉलम मेरा बढ़ता जाएगा इंटीरियर जाने के बाद जो ब्लॉक है वो क्रेडिट नोट करने के बाद वो आखिरी वाला जो मेरा रिटर्न आया ब्लॉक या वो ब्लॉक में कुछ ब्लॉक है वो डैमेज स्टॉक है वो मेरा ब्लॉक ये है इस पे मल्टीपल सिलेक्शन है कौन से स्टोरेज से देखना है कौन से प्लांट का देखना है यूनिट कौन सी है कॉलम आप ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी देख सकते हैं तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं सम फिल्टर एक्सेल जैसे ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल पर्टिकुलर प्रोडक्ट का देखना है प्रोडक्ट लिस्ट का देखना है प्लांट मींस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये है गाजियाबाद गोवा और तीन प्लांट जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको हम प्लांट बोलते हैं प्लांट बोले और यदि जैसे हमने गाजियाबाद में जैसे कि हम विदिन इंटरनली गाजियाबाद में कुछ प्राइस भी है लोकेशन जैसे यदि ये तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग हो गया यदि मेरा कोई डेपो है या हब है जहाँ यहाँ से स्टॉक जाता है तो वो भी ऐसे प्लांट करके कोड बनेगा वो वेयर हाउस उस टाइम पे हम वेयर हाउस यूज करते हैं प्लांट हम मेनली मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं जो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आएंगी प्लस जितने मेरे डिपोज के कोड है या मदर वेयर हाउसेस उसके कोड आएंगे उसके अंदर फिर स्टोरेज में उस तरह डिस्पैच फ्रॉम कुछ हाँ जैसे मुझे मेरा सपोज करो मेरा वेयर हाउस हरिद्वार में ठीक है और मुझे वहां यहीं से इनवॉइसिंग करनी है हरिद्वार से सप्लाइंग प्लान हो रहेगा वो सप्लाइंग प्लान बनेगा डिस्पैच अभी राइट नाउ भी नहीं बट फ्यूचर होगा तो प्लान का टर्म्स का रेफर वो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जितनी है मेरी वो और जितने डेपोज हैं वो एज ए वेयरहाउस वो कोड सिस्टम में क्रिएट होते हैं तो आप देख सकते हैं कहाँ पर क्या स्टॉक दूसरा वाला क्या करता है नेक्स्ट
इसको करें शेयर कर दूंगा एक बार पे किए लोग के साथ ये फॉर्मेट का प्लान उसमें कहा तो ये ठीक नहीं चले तो बाद में इस हिसाब से ये रहने देंगे क्या इन्हीं लोग से कुछ खाली पूछ लेंगे एक भी तो अभी क्या इनकी डायरेक्शन इसलिए जैसे अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक है ये एफसी का है या फिर एफसी मतलब अभी हमने एफसी सेलेक्ट किया है मटेरियल ये जो आप मटेरियल जो भी सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करेंगे हाँ। है वैसे सबका ही लिखेगा सारे प्रोडक्ट ये देखें यहाँ पे नाम चेंज कर देना फिर स्टॉक कर दीजिए नहीं वो एक्चुअली सभी के लिए यूज होता है यूनिवर्सल है मटेरियल टाइप है मतलब वो मेरा फ्री अवेलेबल स्टॉक है इंटरनेट तो वही चीज रहेगा, आप खुद चेंज नहीं कर सकते हो। अभी तक तो जो तो अभी स्किल्ड बन गया है मतलब अभी क्या कुछ मटेरियल हमारा तो वहीं पर ही है मतलब प्रोडक्शन लाइन पर ही है वो हमारा अटैक किया वो हमारा वो डिपार्टमेंटली अटैक है डिपार्टमेंटली जनरेट तो हो गया ठीक है मगर वो एफसी में नहीं है वो इन्वेंटरी वो तो उनकी लोकेशन की आउटपुट पड़ी हुई है लोकेशन में दिखाया वो हमारे वो डिपार्टमेंट में सेटअप है प्रोडक्शन का किया मल्टीपल लोकेशन पर नहीं है आप चाहते हैं आपको देखना है कि मुझे स्टॉक लोकेशन वाइज देखना चाहिए अभी प्रोडक्शन में है या स्टॉक में है उसका ऐसे जगह में तो आप अपनी लोकेशन बना देंगे या लोकेशन वाइज आप देखेंगे ना क्या लोकेशन दी है 181 ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टोरेज दिया ना 181 तो स्टैंडर्ड स्टोरेज आपका प्रोडक्ट कोड एक हो जाएगा नहीं वो स्टॉक टाइप है नहीं कौन सा ये वो अनरिस्ट्रिक्टेड है ब्लॉक है मतलब किस तरह के स्टॉक में पड़ा हुआ है क्वालिटी स्टॉक में है ये आप कौन सा फाइनल आउटकम है कि उस जगह पे कितना मेरा सेलेबल है ये रितेश रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ये दो अच्छी हो गया एग्जांपल के लिए हेलो आप कर सकते हो ये अच्छी हो गया रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो कैसे रिकॉर्डिंग से स्टार्ट ओके 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 श्योर ये लोकेशन बढ़ जाएगी टॉप फ्लोर पे है या कहाँ है ये 3 लाइन यहाँ पे आ जाएगी आपका यदि 1000 में से कुछ टॉप फ्लोर पे है या कौन से लेवल पे वो 5 कनेक्शन आते हैं ठीक है मल्टीपल लोकेशन जैसा क्वालिटी में तो फिर क्वालिटी पे दिखाएगा अभी सर ये देखें यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो कि है पूरे ये लोकेशन का साक्षात एक बार ओपन करो स्टोरेज लोकेशन के बेसिस पर क्या सारी लोकेशन ऐड आ रही है आपकी एफजी शॉप फ्लोर आरएम जो लोकेशन आप सेलेक्ट करो बाकी प्लांट बेस पे अगर आप प्लांट पे एग्जीक्यूट करोगे ना वो सारा चीज दिखा देगा किस लोकेशन पे कितना कितना स्टॉक टाइप में पड़ा है ठीक है 100 स्टॉक है ठीक है वो कहता है 50 क्वालिटीज पड़ा है 10 ब्लॉक में पड़ा है 25 फंक्शंस में पड़ा है माना है कि any further questions into this or we can conclude hello hello No, sir. No question. okay so shall we conclude the meeting yes any other things which are missed please तो जो भी क्वेरी है फर्दर आप कनेक्ट कर लीजिए हमसे या मेल पे आप शेयर कर सकते हैं या जो भी सीटीएम से उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं जो आपको लग रहा है प्रोसेस का फिर इसके बाद ट्रेनिंग सेशन है ट्रेनिंग सेशन में भी हम वापस देखेंगे क्या है प्रोसेस कैसे सिस्टम में आप क्रिएट करेंगे फिर उस समय में जो क्वेरी आएगी वी कैन एड्रेस इन ट्रेनिंग सेशंस फर्दर सर न्यू कस्टमर क्रिएट का ऑप्शन है वो okay sir we'll call off thank you everyone थैंक यू अभी